It gives me great pleasure to bring on board the one and only Ramdev Agrawal of Motilal Oswal Securities on ET Now and ET Now Swadesh. This is ET Now's first visit to their wonderful office after COVID. So it feels like we've come back home. So 2 साल हो गए and so nice to be back. Yes. I'm really realizing that the world has come back to the old style. Yes. I'm sitting right in front of Nikunj. Nothing like face to face. Yes. किससे चालू करें बात? Should we start with Buffett, markets, COVID? You must ask whether did we listen to actually AGM. I attended AGM. In fact, I've been going to AGM for I'm living aside these 2 years. I've been going to Omaha for last 25 years. But I can tell you, sitting here with a cup of coffee in the night, you start at about 9 o'clock and go on till 2 o'clock. It was wonderful experience. And because in the hall out there, you have to see the Mela once. But after that, actually listening to him is fun sitting at home. And you can take your notes. And of course, he has aged somewhat. So he has lost that clarity of speech to some extent. He takes pains to speak at times. But I think his insights, his sharpness, his memory, I think, and he loves talking. At times he said, I've forgotten what questions you asked, what I'm talking. So it was wonderful. His passion, like he always says, that do what you like and you'll never feel like you're working. Yeah. And if I look at Buffett's last declared portfolio, last year the cash was about $140 billion. अब $100 billion के आसपास है. तो एक साइड हम बात कर रहे हैं मार्केट स्पीक आउट होने वाले हैं और दूसरी तरफ बफेट साहब खरीद रहे हैं. बफेट साहब इज एन वैल्यू इन्वेस्टर. वो जब लेते हैं जब उनको माल सस्ता मिलता है, सोना चांदी के भाव में मिलता है. तो क्वाइट अ डाइकोटमी, इजंट इट? मेरे को लगता है कि ही हैज़ रियलाइज कि मैक्रो कॉलों को मतलब नहीं, हम टाइमिंग नहीं कर सकते. बट एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट 12 साल में उन्होंने बहुत ट्राई किया कि बॉटम ऑफ द मार्केट में हम शेयर खरीद ले करके, लेकिन हुआ नहीं. एक बार तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद नहीं खरीद पाए वो, एंड ही सैट इन कैश. फिर उसके बाद अभी वापस 2 साल पहले मौका मिला था कोविड के टाइम में. फिर पावेल साहब ने इतना ज़ोर से कि भाई दैट अपॉर्चुनिटी नेवर केम टू हिम टू बाय इन डिस्ट्रेस. तो इस बार ही जो है आई थिंक एज द मार्केट इज़ करेक्टिंग एंड इफ़ ही इज़ गेटिंग हिज स्टॉक्स तो वो बिंदास खरीद रहे. तो 146 बिल, एक तो खुद का अपना शेयर खरीदे थे. हर क्वार्टर ही वॉज बाइंग $5-10 billion. सो दैट वॉज ऑन फॉर लास्ट 1 year. फॉर दिस क्वार्टर मेरे ख्याल से उसने 51 बिलियन डॉलर्स का उन्हें शेयर्स खरीद लिया है. एंड मेरे को लगता है कि बाय द टाइम दिस एंटायर करेक्शन गेट्स ओवर, मे बी 1 year 2 year, ही विल सिट विद वॉट एवर हिज स्ट्रेटेजिक कैश. 40-50 बिलियन जो उसको होता है उतना ही रहेगा. सो इस साल का जो कैश फ्लो है वो, और जो अभी जो 106 बिलियन है, तो वो समझ लीजिए अनदर $50-100 billion इज इन लाइन फॉर बाइंग स्टॉक. सो Berkshire Hathaway might do very well in the cycle. But do you think that really works? I mean, markets, if you are going against the trend of the market, whether it is Ramdev Agrawal or whether it is Rakesh Jhunwal or Warren Buffett, can you make money? Yes. The only way to make money is buy 10 rupee thing for 5 rupees. And when do you get at 5 rupees? जब डर होता है. जब डर रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगा, बाजार में लगेगा भाई डूबने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है, तब जाके होगा ना. There has to be fear in the marketplace. See, there are only 2 ways to find the stocks cheap. One is there is a complete fear. सब बेच के भाग रहे हैं, जो कोविड में हुआ था. What we saw in COVID. वो हर जगह जब भी पैनिक होता है बाजार में होता है, तो आपको 10 का चीज़ 5 मिलता है. दूसरा ये कि कंपनी नहीं है, उसके बारे में किसी मालूम ही नहीं कि हीरा है, लेकिन वो हीरा किसी मालूम नहीं कि हीरा है. सो 2 तरीके. तो ये तो उस गेम में है ही नहीं. छोटी कंपनी तो खरीदता नहीं. इसको $50-100 बिलियन, $200 बिलियन, $300 बिलियन की कंपनी चाहिए. तो उसमें तो नहीं जानने वाली तो कोई बात होती नहीं. तो जब परसेप्शन और रियलिटी गैप रहता है कि भाई परसेप्शन ये है कि ये बहुत ख़राब कंपनी है, ख़राब समय है, ख़राब सेक्टर है, उस समय लोग बेच जाते हैं. बट रियलिटी क्या है कि सॉलिड कैश फ्लो है. अब उसने ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम खरीदा ना, 14 टका खरीद लिया 15 दिन के अंदर. एक क्वार्टरली रिजल्ट का डेक देख के, इन्वेस्टर प्रेजेंट देख के उसने खरीद लिया. और बोलता है कि ही इज सरप्राइज कि 14% ऑफ, आई थिंक दिस इज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड, दैट ही कुड बाई फ्रॉम द स्क्रीन. So when Buffett is buying, Buffett accepting Apple historically has been an old economy investor. Yes. So can I say that now this is also an endorsement from the big daddy of value investing, that the investing style has changed. Growth will take a back seat, tech will take a back seat,
peak players will take a back seat. Now it's time to go back to सस्ता क्या है, प्राइस क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, कैश फ्लो कितने हैं. Our market's going back to that. क्लियरली ग्रोथ में कुछ ज़्यादा अत्याचार हो गया. ग्रोथ के नाम से मतलब जो कंपनी पैसे नहीं कमा रही है और बोल रहे हैं कि हम इस जन्म में पैसे नहीं कमाएंगे, उसको भी वैल्यूएशन मिला. तो वो एक एक्सट्रीम था ग्रोथ वैल्यूएशन का. बट ग्रोथ एज अ सोर्स ऑफ वैल्यू विल रिमेन एंड दैट विल बी द बिगेस्ट फोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन. भाई आप 100 करोड़ कमा रहे हो, हाँ जी. इस 100 करोड़ को आप कितना भी वैल्यूएशन कर लो ना, उतना ही रहेगा. जब तक 100,000 नहीं आएगा, प्रॉफिट जो है 100 का 1000 नहीं आएगा, तब तक वैल्यू क्रिएशन क्या होगा. जैसे मैं HDFC बैंक की बात कर रहा हाँ हूँ, जी. जो 95 में जो बैंक चालू हुआ 150 करोड़ कमाते थे, आज 40,000 करोड़ का नफा किया. तब न जाके इतना बड़ा मार्केट क्या बना. विदाउट ग्रोथ थोड़ी बनने वाला. 25% से कंपाउंडेड 25 साल तक इन्होंने किया तो इतना बड़ा 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर का बैंक खड़ा हो गया. तो ग्रोथ इज द कोर पार्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड दैट इवन बफेट रियलाइजेस. बट ये है कि कितना हाउ मच यू आर पेइंग फॉर इट. Why is HDFC Bank underperforming? मर्जर के पहले भी अंडर परफॉर्म कर रहा था और मर्जर के बाद तो एकदम गिर चुका है. We are talking about Berkshire Hathaway, but I mean I think it's one of the most wonderful thing which has happened in last 25 years to HDFC to have created HDFC Bank. Okay, so now it will be most formidable force, Bank plus HDFC Limited, and all the subsidiaries of insurance and whatnot they have, and $200 billion kind of thing. And this is यह देश की नाक है. आप समझो, आप ग्लोबल स्टेज पे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक खड़ा होगा. यू कैन अंडर राइट ग्लोबल डील्स, यू कैन अंडर राइट वेरी लार्ज डील्स. और यहाँ से देखिए आप सिस्टम विल ग्रो एट 14-15%, दे विल ग्रो एट मे बी 18-20%. तो अगले 4 साल में लाख करोड़ का नफा दिखता है आपको. बहुत में होगा तो 5 साल हो जाएगा. तो लाख करोड़ जब कमाओ तो एक मशीन बनती है. वो इज क्रिएटेड दिस. अगर आप ग्लोबली इकोनॉमी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू मूव हायर. And Buffett always says that interest rates are like gravity. Interest rates will go higher, valuations will come down. How will the adjustment happen? वैसे होगा, आपको अर्निंग्स बढ़ते रहेगा, पी मल्टीपल वहीं रहेगा, नीचे आते रहेगा. तो जो महंगे शेयर है they will not make money. अब जैसे देखिए इंडेक्स से बात करें, फॉर एग्जाम्पल एनी कंपनी, इंडेक्स में भी 730 रुपये EPS है इस साल का, 22 का. अगले साल का मेरा एनालिस्ट चालू किया 900 से, फिर धीरे धीरे करते करते भी 860 870 तक बोल रहा है. तो ये 850 रुपये भी EPS आता है आपका 22-23 में. तो यू आर टॉकिंग अबाउट 17,000 का इंडेक्स से 20 का पी होता है करंट ईयर. अच्छा, अब क्या है, मतलब अब इन्फ्लेशन आपका बहुत ज़्यादा होता है और आपका जो 10 ईयर पेपर जो अभी 7.10 720 है वो यदि बढ़ गए 9% 10% भी आता है, तो क्लियरली लॉट ऑफ फिक्स्ड इनकम गाइज हु आर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, HNIs, दे वुड लव टू गो बैक टू फिक्स्ड इनकम. और इंक्रीमेंटल मनी विल नॉट कम हियर, दैट विल गो टू फिक्स्ड इनकम. लेकिन ये होगा नहीं होगा ये किसी को मालूम नहीं. सो यदि जो 5-6% का जो फिक्स्ड इनकम का जो प्रोफाइल था इंडिया का, यदि वो आता है तो मेरे ख्याल से होल शेयर में शिफ्ट होगा. और दूसरा ये जो रिटेल का जो अनफ्लक्स है, जो अभी 40 मिलियन जो अकाउंट्स थे वो 90 हुए, वो आपको 200-250 तो होगा ही होगा. अब वो एक साथ में होगा या रुक के होगा, 4-5, मेरे को लगता है 5 साल में 200-250 मिलियन रिटेल अकाउंट्स हो जाएंगे. सो पार्टिसिपेशन विल मैसिव. दिस इज गोइंग टू बी सेलिब्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ही सब कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन क्लियरली इट्स अ हेडविंड, इट्स नॉट अ टेलविंड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन. फॉलिंग इंटरेस्ट रेट इज टेलविंड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आई थिंक यू विल गेट अ बेटर वैल्यूएशन. तो बफेट ने इस बार एक और पहली बार शायद गैम्बलिंग और वॉल स्ट्रीट को कंपेयर करा है. उन्होंने कहा कि भाई वॉल स्ट्रीट आई वुड लाइक टू इन अ सेंस डांट मारी है कि भाई वॉल स्ट्रीट में लोगों ने क्या करा है, गैम्बलिंग कसिनो बना दिया है. और अगर मैं हिंदुस्तान में भी देखूं तो जिस प्रकार से ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, अगर मैं आपको कुछ पीयर कंपनीज के नोट्स देखता हूं, उनकी ब्रोकिंग इनकम देखता हूं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन देखता हूं, तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड के बाद कई लोग आए थे बिना सोचे समझे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं. कुछ दिन पहले प्रशांत जैन भी हमारे शो पर आए थे, ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि भाई आत्मनिर्भर होना अच्छा है मगर स्टॉक मार्केट में आत्मनिर्भर मत होइए. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? क्या इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है? वो जब डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे अच्छी खबर है, मगर क्या इंडियन निवेशक रिस्क भूल रहा है? सी, निवेश इक्विटीज़ में निवेश करना बहुत बढ़िया बात है और वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है. ओके, लेकिन जो स्पेकुलेशन होता है बाज़ार में, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग वो हैंड इन हैंड जाता है. हाँ, यू कैन नॉट हैव ओनली इन्वेस्टिंग मार्केट, अदर विल बी डेड मार्केट.
क्योंकि इन्वेस्टर्स कई बार सालों सो जाते हैं, तो हाउ विल यू मेक द मार्केट? सो फॉर क्रिएटिंग लिक्विडिटी यू नीड स्पेकुलेशन. नाउ व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टिंग? हाँ, यू वुड से कि चलो भाई 1:10 होना चाहिए. यदि एक लाख करोड़ का मान लो सौदा हो रहा है कैश में, तो 10 लाख करोड़ का स्पेकुलेशन होना चाहिए. दैट शुड गिव अ गुड इनफ, बट दैट कंट्रोल इज नॉट देयर. टुडे योर F&O volume in NSE is touching 80-90 lakhs per day. On Thursdays it is like 200 lakh crores per day. And most of the guys, they are not aware how big it has become. And it is growing even now. 200 lakh crores per day. मतलब like this is equivalent to $2.5 trillion a day on every Thursday. बेसिकली मार्केट कैप मैं दर्शकों को बता दूं, इंडिया की जो मार्केट कैप है करीब $3 ट्रिलियन है, और $2-2 ट्रिलियन थर्सडेज को एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम होता है. तो एक प्रकार से हो गया पूरा एक शेयर बाजार एक बार ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है. तो बहुत ज़्यादा है. तो वही तो जो अच्छा ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. देखिए, हमने चालू किया कैरियर 87 में, 2000 करोड़ सौदा होता पूरे बाजार, 500 ब्रोकर थे, थक जाते थे सौदा करते करते, क्योंकि सब ट्रेड टू ट्रेड था, पूरा सब फिजिकल था. वादा निकालो, ये करो, पतावट करो, कैश में 2000 करोड़ में T+15 में सेटलमेंट नहीं होता था. अभी आपका डेली सौदा होता है करीब 70-80 लाख करोड़ का, जो भी T+1. जस्ट इमेजिन व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कन्वीनियंस इट हैज़ कम, बिकॉज डीमैटेड शेयर्स एंड instant access on the trading. So can I, and I don't want to get this one wrong, so can I say that Ramdev Agrawal feels that market currently has rampant speculation, or you don't think like that? Indian markets, all the markets, it's not Indian. What is happening in US is happening here. It's not that we have तो got फिर तो मार्केट गिरने चाहिए. स्पेकुलेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो अक्सर कहा जाता है भाई फिर मार्केट में सतर्क रहना चाहिए. You should be careful when speculators are there. No, but it is a structural change in the market. Okay. It has nothing to do with the going up and down. Okay. Clearly, यदि बाजार नीचे आएगा तो lot of speculators will get very bad experience. They lose money. Okay. So वो होगा, लेकिन क्या है ये, it's a human nature. Speculative nature is human nature. तो ये जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन होगा ना, तो नेक्स्ट राउंड में not 90 million, 150 million people will come. So it is going to keep expanding unless regulators or somebody changes some rules of the game. एक बड़ा बुनियादी सवाल, और मैं दर्शकों को बताऊं दैट इन्फ्लेशन आ रही है, जिसे महंगाई बोलते हैं. इन्फ्लेशन मीन्स दैट आपका 100 रुपये जो है हिंदुस्तान के अंदर अगले साल 95 रुपया हो जाएगा, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर 5 से 6% इन्फ्लेशन है. तो इन्फ्लेशन के अंदर एक तो इक्विटी मार्केट का रिटर्न्स कम होगा, मगर इन्फ्लेशन में अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आपको और लॉस होगा. So how should one deal with this? How can one make their portfolio, their net worth, Teflon coated against inflation? Teflon coated तो क्या कर सकते हैं, लेकिन buy something which will do better than inflation, है ना. तो उसी कारण से ग्रोथ कंपनी खरीदते हैं हम लोग, और ये अंडर प्राइस कंपनी खरीदते हैं. बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज one artist who can negotiate all the variables and yet make money. So जहाँ 15-17%, 18% ग्रोथ है, तो एक फंडामेंटल बेसिस पे उतना वैल्यू से ग्रो हो रहा है. सो यदि 6-7% इन्फ्लेशन है, सो यू आर एक्चुअली नेट ऑफ इन्फ्लेशन यू आर गेटिंग वैल्यू एक्रेशन ऑफ 10-12%. दैट इज द बेस्ट. When interest rates they go higher, markets will start migrating more towards big companies, quality companies, companies which have a big cash flow. But sir, the challenge with that is that today if I look at the A grade companies, भले वो Asian Paints हो या फिर Pidilite हो, they are expensive. तो ये जो मार्केट के अंदर जो प्रेफरेंस है कहाँ पर जाएगी? बिकॉज यू वांट टू अवॉइड कंपनीज विच हैव अ डेट बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो हायर, बट कंपनीज विच डोंट नीड डेट एंड आर स्टिल ग्रोइंग आर ट्रेडिंग एट P मल्टीपल्स विच मे नॉट जस्टिफाई रिटर्न. तो बड़ी डायकॉटमी है. सो वो तकलीफ होगा, क्योंकि जो फुल्ली वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंपनीज हैं, दे विल मतलब वो इंडेक्स में हाथी की तरह बैठ रहेंगे वो, लेकिन उससे रिटर्न नहीं आएगा. और बहुत इंडेक्स कर रहा है 15%, आपका 8%, 10% आएगा इस टाइप का. क्योंकि आप पिछले 5-7 साल में देखें, इतना ज़्यादा रीरेटिंग हुआ है, अर्निंग्स उतना नहीं आया है. खाली रीरेटिंग हुआ है. 20 का पी हो रहा है 40 हो गया, 40 वाला 60 हो गया. तो ये कब तक रीरेटिंग करेंगे? बाजार है भाई, मतलब मालूम नहीं 80 पी का 160 पी भी कर लो. आई मीन देयर इज नो लॉ दैट इट शुड ट्रेड ऑन ओनली 80 पी, बिकॉज दीज कंपनीज डोंट इशू शेयर्स, दे आर रेयर कंपनीज. सो nowadays you find so many companies with 120, 130, 150p, 200p, and then infinite p with the loss making company. So
देखिए बाजार का कैरेक्टर बहुत अलग है, मतलब यानी बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी एक साइड, दूसरा तरफ कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी बीइंग सो लो। सो ये जो है जैसे जैसे लिक्विडिटी का कॉस्ट बढ़ते आएगा और लिक्विडिटी कम होते आएगा, ये दोनों साथ साथ होंगे, तो अब ये काफ़ी चरखा पलटेगा। अब कहाँ कहाँ पर उसका इम्पैक्ट आएगा, क्या हो सकता है कि जितने 60-70-80 पी वाले हैं वो 40 हो जाएँ, जो अनवाइंडिंग करें, जो रीरेटिंग हुआ था वो सस्टेन वे में डीरेटिंग हो, मतलब आपका अर्निंग्स बढ़ा 20% से, लेकिन भाव वहीं वहीं है, तो क्या हुआ 20% से डीरेटिंग होगा। तो ये सब चीज़ें बाजार में अब क्या क्या बाजार करेगी मालूम नहीं, लेकिन लॉजिक डिमांड्स दैट जहाँ पर एक्सेसिव वैल्यूएशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे नॉट मेक मनी एंड अर्निंग्स विल कैच अप विद द वैल्यूएशन। कोविड के पहले हम एक वर्ड यूज़ करते थे ESG, हाँ और एक जनरल व्यू ये था कि भाई उन कंपनीज में निवेश मत करो जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, हाँ। NTPC, ITC, कोल इंडिया। अब हम देख रहे हैं वही स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, ITC, कोल इंडिया, NTPC। क्या राइट है क्या रॉन्ग है? देखिए राइट रॉन्ग तो कंसेप्चुअली वी कैन कीप डिस्कसिंग वेदर, एक तो आई एम नॉट अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ ESG, सेकेंड आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन दैट, लेकिन देखिए बाजार एक ऐसा लेवलर है ना जहाँ पर दोनों तरफ जाती होती है। हाँ जी। जब जैसे ESG से हिट कोई कंपनी, मतलब कोल इंडिया है, ITC और उसको सब मतलब पूरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब बेच बुझा के भाई कसम खा लेंगे हम ये नहीं खरीदेंगे, तो भाई अब तुम नहीं खरीदो कौन खरीदेगा, फिर आपको बेच भी जाने का। सो क्लियरली बॉटम बन जाता है। अच्छा कंपनी जो है ना वो तो बड़े प्रेम से पैसे कमा रही है, डिविडेंड भेज रही है, तो 2% यील्ड, 4% यील्ड, 6% यील्ड, 8% यील्ड, 10% यील्ड। भाई 10% यील्ड आपको बॉन्ड में, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में आपको 6% मिल रहा है, वो भी प्री टैक्स, वहाँ पर पोस्ट टैक्स आपको 10% मिल रहा है, तो कहीं कहीं तो वो मतलब यानी इन्वेस्टर आएगा ना सामने। तो अगले 5 साल की अगर बात करें, मैं थोड़ी क्लॉक पीछे ले जाऊंगा जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स। हम कहते हैं शेयर बाजार के अंदर हमेशा एक ट्रेंड है, लीडरशिप आती है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, जब आपने करियर स्टार्ट करा था सीमेंट और स्टील था, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था TMT बोलते थे, उसके बाद कमोडिटी स्टॉक्स आए, उसके बाद एक समय आया था जी एशियन पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज और टाइटन चलने लगे, फिर अभी कंज्यूमर टेक में हमने देखा था चक्र आया था। तो अगला 3-5 साल क्या चक्र आपको लगता है जो एक आउट परफॉर्मिंग चक्र रहेगा? देखिए मतलब जो मेरे को दिख रहा है कि भाई जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस वगैरह, उनकी बहुत पिटाई हुई है एक कोविड वगैरह में, बिकॉज ऑफ क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ गया, तो वो एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर माइग्रेशन अभी भी चालू है। प्राइवेट सेक्टर्स स्टिल 40%, तो वो उधर बड़ा स्टोरी है। और बड़े बड़े बैंक है, ये 4 ही बैंक है बस, तो ये पैसे तो बहुत कमाएंगे ये। और वैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि ओनरशिप भी बहुत है इसमें, 60-70% FIs का ओनरशिप है, तो वेदर दे विल इंक्रीज ओनरशिप एट ऑल, लेकिन अर्निंग्स है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, पक्का भाव बढ़ेगा। सो दैट इज़ वन सेगमेंट वेयर देयर इज़ अ गुड सेक्युलर अपॉर्चुनिटी आउट देयर। सेकेंड इज़ टेक, इंडियन टेक इज़, देखिए जो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट इज़ दैट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 सेक्टर्स आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सेकेंड इज़ IT बहुत बड़ा हो चुका है। IT का प्रॉफिट जो है करीब आप समझ लीजिए मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा। भाई दमानी जी बता रहे थे, रमेश दमानी जी, कि IT का इस साल का जो एक्सपोर्ट जो हुआ था वो अरामको के ऑयल एक्सपोर्ट के बराबर है। हाँ, $200 बिलियन, कमाल की बात। या वही तो, अच्छा ये बढ़ते आ रहा है और शायद आपके सामने हुआ है। हाँ, $200 बिलियन पूरा मेरे सामने हुआ पूरा। तो ये क्या है कि देखिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, तो ये दैट विल कीप जनरेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट, 15-17-20%, एंड एसेट लाइट है तो बहुत फ्री कैश फ्लो होगा। सो दैट विल बी अ बिग सेक्टर। आपको फिनेंस विल बी बिग सेक्टर, IT विल बी बिग सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जैसे रियलिटी है, रियलिटी इज सपोज टू बी वेरी लार्ज, मतलब आप क्या बात करें, मतलब यहाँ पर मतलब कितने मिलियन घर हर साल बिकने चाहिए, वो अराउंड रियलिटी बहुत पैसे बनेंगे मुझे लगता है। अब रियलिटी में डायरेक्ट रियलिटी कंपनी खरीदो, लेकिन रियलिटी कंपनी में सब अकाउंटिंग ये वो उनका कैश टर्न और मतलब बेसिकली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, you know, and profitability, not profits. Profits are there now, but profitability is an issue because their asset efficiency is not there. और रिटर्न रेशियोज भी 10% से कम ही है। वही ना, उसी कारण से कम है, तो वो बट बड़ा साइज बनेगा वो। सो अच्छा उससे रिलेटेड जितने हैं जैसे पेंट्स हैं, सीमेंट है, स्टील है, बिकॉज इट्स अ लार्ज कंट्री विथ लार्ज डेफिसिट इन द हाउसिंग डिमांड, हाउसिंग स्टॉक, तो ये बड़ा एक सेगमेंट है और काफ़ी पिटा हुआ है। 2008 के बाद जो है अभी तक ऊपर आया नहीं हो। एक समय था DLF की 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा सेगमेंट है और एक बड़ा साइकिल होता है, एकदम ओवरनाइट ख़त्म नहीं होता है। अफोर्डेबिलिटी इज़ हाईएस्ट, तो वो एक अच्छा लगता है सेक्टर, बड़ा सेक्टर लगता है मेरे को आगे चल के।
फिर आपके ऑटोमोटिव, देखिए मोबिलिटी जो है जरूरत पड़ता है, आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो आपको मोबिलिटी चाहिए। अब मोबिलिटी में क्या कन्फ्यूजन हो कि वेदर इट विल बी आईसी और ईवी, वो एक मारा अभी मारी तो साहब टू व्हीलर्स में आग लग रही है। हाँ वो तो आग लग रही है, लेकिन ठीक है सुधारेंगे वो, और वो तो होगा। कुछ दिन पहले ईवी के शहरों में आग लगी थी। हाँ अभी ईवी में आग लग गई लेकिन क्या है, ये मैटर ऑफ टाइम है। दिस टेक्नोलॉजी इज नाउ देयर टू स्टे, एंड आई बिलीव नेक्स्ट ईयर गुड पोर्शन ऑफ टू व्हीलर्स विल बी इलेक्ट्रिक, मे बी 10-15% और सो। और जो आपके इंकम्बेंट हैं, बजाज है, हीरो है, आइशर है, टीवीएस, ये सब भी जो है ना अपने जो लैब में जितने प्रोडक्ट्स हैं नाउ दे विल लॉन्च, क्योंकि अब वो बिना ईवी के रह नहीं सकते। अब कुछ आखिरी 4-5 सवाल। कमोडिटी में आपने हमेशा बोला है दैट लुक आई डोंट अंडरस्टैंड कमोडिटीज, वॉलेटाइल होते हैं, मगर अभी तो लग रहा है कि कुछ लंबे ट्रेंड्स हैं यहाँ पर। हाँ ऐसा लग रहा है। तो कमोडिटी रादर देन बाइंग स्टील एंड सीमेंट स्टॉक्स और स्टील एंड लेट्स से कॉपर स्टॉक्स, इज देयर एनी अदर वे टू बेट ऑन कमोडिटीज? आप नहीं कमोडिटी हैव टू प्ले डायरेक्ट एज ओरिजिनल एज यू कैन गो। जो माइनिंग प्लस प्रोसेसिंग है, एल्युमिनियम है, जिंक है, स्टील है, जहाँ पर आप माइनिंग करते हैं और उसको प्रोसेस करके मार्केट्स में बेचते हैं, सो यू हैव टू बाई बेस्ट ऑफ देम। यही डर क्या लगता है कि अभी साइकिल है, अभी मतलब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल है, अभी तो मतलब दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, मतलब चाहे वो वार हो, चाहे लॉजिस्टिक डिसरप्शन हो, चाहे सडन डिमांड फॉर द आफ्टर कोविड फॉर द कमोडिटीज आर देयर, सो हर तरीके से उनको बेनिफिट हो रहा है। बट जैसे ही मतलब यानी जो बाई चांस देयर इज अ रिसेशन, भाई आपने इतने तो पैसे छाप दिए, हाँ जी, हाँ जी। और उसको पैसे का बाहर निकालने का है, तो अब सी ऐसा तो नहीं है कि कोविड होने से दुनिया का बहुत बहुत उद्धार हो गया, इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी, यू नो दैट, जी हाँ जी। है ना। सो बट मार्केट्स हैव बूम्ड, ऑलमोस्ट डबल्ड इन दिस कोविड पीरियड, मार्केट्स आर डबल्ड। सो करेक्शन कितना डीप होगा मेरे नहीं मालूम, लेकिन करेक्शन तो होगा। दो आखिरी सवाल, एक बड़ा बुनियादी सवाल। जब हम रामदेव जी से पहले बात करते थे अक्सर स्टॉक स्पेसिफिक बातें हाँ करते वो थे, एक तरीके मगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ आज के कॉन्वर्सेशन को। मैं कॉन्वर्सेशन पूछता हूँ बिकॉज हमारी ऑडियंस भी बहुत मैच्योर है, सिप के जो फ्लोज आ रहे हैं, अगले 5 से 7 साल या 5 से 10 साल तक क्या शेयर बाजार के अंदर 12 से 15% का रिटर्न एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है जो हो सकता है, या फिर मैं बोल रहा हूँ मैं जी हवाई किला बना रहा हूँ? मैं 10 से 12 बोलूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितना कम रखे ना उतना अच्छा है। मैं बोलूँ एक दूसरा फार्मूला दूँ आपको, जितना फिक्स इनकम रिटर्न है, जैसे मान लो 6% आपका ट्रेजरी है तो आप 12 समझे, यदि 5 है तो 10 समझे, तो अभी 7 है। हाँ तो 7 है तो आप समझिए 13-14% का एक्सपेक्टेड, मतलब यदि आपको 7 लगता है कि एलिवेटेड रहेगा, सो 13-14% इज़ नॉट अ बैड एक्सपेक्टेशन, बट एनीथिंग अराउंड डबल डिजिट, लो डबल डिजिट, 12, 13, 14, यू हैव टू बी लकी ऑल्सो। मतलब इंडिया का क्या मतलब बोलते हैं भाई दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, यदि टाइम फॉर इंडिया होना है, यदि बाई चांस यू बिलीव इन दैट, 10-20% बिलीव करते हैं, उतना तो कदम डालो आप इक्विटी में। तो और दूसरा तरीका क्या है खेलने का, यदि आप बोलते हो कि जैसे बेस्ट टीम है बोलते हैं तो बेट लगाओ कि बेस्ट टीम में जीतेगा करके, ऐसे इंडिया इज लुकिंग लाइक द बेस्ट कंट्री टू मेक इट। अच्छा हर बार क्या होता है, हर 20-30 साल में एक बड़े इकोनॉमी का राइज होता है, एक चौपट होती है, एक ऊपर होती है। नहीं चौपट तो जनरली मतलब जो बड़े हो गए, जैसे जापान उठा 80s में, चाइना उठा अभी 2000 के बाद, तो ऐसा कोई ना कोई बड़ा चीज़ वर्ल्ड को उठाना ही पड़ेगा, और मेरे को लगता है इंडिया का एक अच्छा चांस है, होगा नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। वी हैव राइट काइंड ऑफ फॉरेक्स, वी हैव द स्टेबल पॉलिटिक्स, वी हैव द इनफ फूड, वी हैव ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड वी हैव स्टेबल पॉलिटिक्स, तो मतलब सब चीज़ सही है, समय आ चुका है। हाँ कैसे समय आ कि समय आ गया, चुका है। टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया, सारे नक्षत्र सही जगह पर भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो यदि ऐसा हो गया तो इक्विटी के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं खेलने का, नहीं हुआ पीछे जैसे रहा डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ऑल, तो भी 10-12 का बना है, तो जीत दोनों तरफ आपकी। हाँ मतलब जीत भी मेरा पट भी मेरा, मतलब मेरा लोअर बाउंड विल बी 10%, अपर बाउंड कैन बी 15%, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने का, जी हाँ। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने का। तो आखिरी सवाल, अगर मैं देखूं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ ने मेहनत 30-35 साल की मेहनत करी तब हम यहाँ पहुँचे हैं। जूनवाला साहब हमें बताते हैं जी वो 1980 से शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, निमिष भाई 1980 से जुड़े हुए हैं, 30-35 साल की मेहनत करी है। मगर अगर मैं देखता हूँ स्टार्टअप के अंदर जो बिलियनर आए 3 या 4 साल की मेहनत के बाद आ जाते हैं अक्सर, तो अब क्या उम्मीद करनी चाहिए? अब क्या लगता है कि जैसे इकॉनमी एक्सपैंड करेगी, द पेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, पेस ऑफ बिलियनर journey will be smaller, or it will go back to that hard work and lot of sweat? You're talking about
अस नो इन जनरल मैं एक ये समझना चाह रहा हूँ बिकॉज कोविड से पहले भी हमने देखा था कि स्टार्टअप्स की वजह से काफ़ी बिलियनर्स हुए थे, कोविड के बाद वो पेस और हो गई। तो ये जो अचानक बाजार के अंदर हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ बिलियनर्स हों या लिस्ट ऑफ नए बिजनेसेस हों, जिस तरह से स्केल अप हो रहे हैं, कमाल की बात है। पेस हैज इंटेंसिफाइड। डू यू थिंक द सेम पेस विल कंटिन्यू? आई थिंक इट विल एक्सेलरेट बिकॉज टेक्नोलॉजी। आप देखिए पेमेंट, अभी यूपीआई कितने दिन पहले आया? 2 साल पहले आया होगा, 2.5 साल पहले आया होगा। अभी देखिए क्लियरिंग कितना हो गया, 10 लाख करोड़ पर मंथ हो गया। एंड इट इज एक्सप्लोडिंग एट द रेट ऑफ 25-30%. सो टेक्नोलॉजी हैज़ दैट पावर ऑफ कंसोलिडेशन एंड फ्रिक्शन फ्री स्केलेशन। तो वही बात इंटरप्रेन्योरशिप में भी होगा। अभी आप देखिए कितने वो क्या यूनिकॉर्न्स बन गए, एंड नंबर ऑफ कंपनीज गेटिंग रजिस्टर्ड इन इंडिया इज ग्रोइंग बाय 25-30%. You know, so entrepreneurship is spreading. It is going to rural, it is going to tier 3 town, tier 4 towns, and there is so much of what you call startup money is available, global as well as local. कितने लोग हैं प्राइवेट में जो करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ डायरेक्ट चेक लिख रहे हैं? स्ट्राइक रेट इज गोइंग टू बी वेरी बैड, लेट मी कॉशन यू। बट यदि आपके पास आइडिया है, आप यंग कॉलेज स्टूडेंट हो, 3-4 लोग मिल के आ रहे हो, आपको पैसे मिल जाएंगे यदि आइडिया में पावर है तो। जो हमारे टाइम में नहीं था। मोतीलाल ओसवाल इज अ प्रॉपर स्टार्टअप, बट हमको 15 लाख रुपए भी लेने के लिए हमको 4 साल मेहनत करना पड़ा। तो वो चीज़ अभी नहीं है। यदि वही आइडिया हम अभी लेके आए मोतीलाल ओसवाल का 87 में, तो आपको लाख 2 लाख नहीं, आपको करोड़ों रुपए मिल जाए। तो ये एक बदलाव है और ये एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी है। एंड मेरे को लगता है कि इट्स अ वेरी गुड टाइम। ऐसा नहीं कि दूसरे देश अच्छे नहीं कर पाएंगे, बट हमारा चांस बहुत अच्छा है। नहीं जी, लग रहा है अगर हम देखें रशिया में क्या हो रहा है, अगर हम देखें चाइना में किस प्रकार की नीतियाँ चल रही है, हमारे ब्याज दर, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, चाइना 1+ पॉलिसी, लेट्स होप दैट अभी चीज़ें एक साथ आई हैं, अब बेनिफिट उसका देखें। बड़ा अच्छा लगा जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम बैक टू योर ऑफिस। आई मस्ट शेयर विद आवर व्यूअर्स दैट this building in a sense we got very lovely memories, and this building in a sense really represents one simple thing: the spirit of hard work and view on long term commitment. Thank you very much. Thanks Nikunj for coming here.